बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Subject chemistry, class 9th. Today we study about concentration units of solution. Concentration units of solution. We study about solution. Solution means a homogeneous mixture of one or two components. Homogeneous mixture means that solute which completely dissolve in a solvent and make a solution. This homogeneous mixture we can separate physically. What is concentration? Concentration means amount of solute dissolved in 1 unit of solvent or solution. Concentration does not depend upon the amount of solvent or solution. Or mixture present. Concentration is most often expressed as the ratio of the amount of solute to the amount of solution.
Since the parts of the ratio can be given in term of mass, volume or moles. So chemists imply a variety of concentration units. We study about concentration and solution. Solution a homogeneous mixture of one or two components. Solution जो है वो homogeneous mixture होता है एक या दो components का. Homogeneous mixture mean कि हम शरबत बनाते हैं, हम सल्यूट जो है वो शुगर ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं और जो सॉल्वेंट है उसमें हम पानी ले रहे हैं. तो चीनी को हम पानी में हल करते हैं तो चीनी जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पे हल हो जाती है. इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे. तो जो हमें शरबत मिलेगा वो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे. कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन मींस के मिकदार, हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, जो शरबत बनाया है, उसके अंदर हमने चीनी, शुगर कितनी डाली है, उसकी अमाउंट को हम कंसंट्रेशन कहेंगे. कंसंट्रेशन जो है वो जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्सचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. कंसंट्रेशन को बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसको ज़ाहिर करते हैं, अक्सर ज़ाहिर करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, हमने कितनी अमाउंट ली है सॉल्यूट की और कितनी अमाउंट ली है हमने सॉल्यूशन की. इसके अलावा हम जो रेशियो है इसकी, उसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, जैसे है मैस, वॉल्यूम और मोल्स. तो केमिस्ट ने कंसंट्रेशन यूनिट्स की एक वैरायटी को इम्प्लाई किया इसके अंदर. नाउ we study about percentage composition. Percentage composition को 4 different वे से डिस्क्राइब किया गया है. Percentage composition. Four different ways. These are number 1, mass by mass percentage. Number 2,
वॉल्यूम बाय mass percentage. Number 3, mass by volume percentage. Number 4, volume by volume percentage. Now we discuss one by one these percentage compositions. First we discuss about mass by mass percentage. It is the part by mass of the solute dissolved per 100 parts by mass of solution. In mass by mass percentage, we explain it with an example. If we can understand, we wanted to make 10% mass by mass percentage. 10% mass by mass solution of glucose. In this case, we take 1 gram of glucose and 90 gram of solvent water. Solvent. In this example, glucose is a solute and solvent is water. In this way, when we dissolve 10 gram of glucose in 90 gram of a solvent water, we can obtain 100 of solution.
in formula. Mass of solute, mass of solution multiply 100. जब हम 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमें 100% जो होगा वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस 100% सॉल्यूशन को जो हमें मिला है, जो उसकी टोटल मास है, इसको हम मास बाय मास परसेंटेज कहेंगे। Now we discuss about mass by volume percentage. Third action methods, mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by mass percentage, and volume by volume percentage. We discuss mass by mass percentage. Now we discuss mass by volume percentage. It is the parts by mass of solute per 100 parts by volume of solution. We take an example of 10% mass by volume solution. In this example, we take 10 gram of urea and sufficient amount of solvent, that is water, to make 100 cubic centimeter solution. So we can write it mass of solute divided by volume of solution multiply 100. It is formula of mass by volume percentage. Next, we discuss about
वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। Volume of by mass percentage, it is the parts of, it is the parts by volume of solute per 100 parts by mass of solution. Volume by mass percentage, we take example of 15% alcohol dissolved in total mass of solution to make 100 gram of solution. So we can write formula of volume by mass percentage. Volume of solute divided by mass of solution multiply 100. At the last we discuss by volume by volume percentage. In volume by volume percentage, we took solute and solvent both in volume. Volume by volume percentage. It is the parts of solute in volume and per parts per 100 parts by volume of solution. Volume by volume percentage, we took example of 12% alcohol in 100 cubic centimeter solution. In such solution, it is not necessary equal to the sum of the volume of solute and solvent. So we can write
formula of volume by volume percentage. Volume of solute divided by volume of solution multiply 100. Now we discussed about percentage composition. I hope you listen full concentrationly and understand it. इसमें आपने याद ये बात रखनी है कि हम दो चीजें ले रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैथ्स बाय मैथ्स में हम दोनों चीजों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब ले रहे हैं तो दोनों को हमने, जो मैथ्स की यूनिट है ग्राम, उसमें हमने इसको डिनोट करना है, शो करना है। मैथ्स बाय वॉल्यूम में हमने सॉल्यूट को ग्राम में, जबकि सॉल्वेंट को हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में शो करना है, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज के अंदर आपने सॉल्यूट को क्यूबिक सेंटीमीटर में और जो आपके पास सॉल्यूशन है उसको आपने ग्राम में शो करना है। एट द लास्ट, वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज में आपने दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को, दोनों को अपने क्यूबिक सेंटीमीटर में शो करना है। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि आप सॉल्यूट को ऊपर लिख रहे हैं और सॉल्यूशन को नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर हम ये बात सीख रहे हैं कि हमने सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट कितना लिया है और सॉल्वेंट कितना लिया है। तो इस फार्मूले से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की जो है वो हमें कंपोजिशन का पता चल जाएगा। We took an example to understand the percentage composition. Example है, calculate the percentage by mass potassium chloride when potassium chloride is 1.00 gram and dissolve in 25 gram of water. Calculate the percentage by mass of potassium chloride. आपने पोटेशियम क्लोराइड की बाय मास परसेंटेज को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के लिए वो कितनी है, 1.00 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट 25 ग्राम। We find with the help of solute and solvent mass of solution
1.00 ग्राम है और mass of solvent 25 ग्राम है। तो mass of solution हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड को हमने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है। तो इट्स मीन कि जब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो 25 ग्राम प्लस 1.00 ग्राम इज इक्वल टू 26 ग्राम। तो फाइंड हमने क्या करना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये हमने फाइंड करना है। तो क्या होगा, अभी हमने mass by mass फार्मूला अभी हमने जो है वो पढ़ा है, mass by mass परसेंटेज। तो mass by mass परसेंटेज के अंदर यहाँ पे आपको बताया था कि हम लेंगे mass ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass ऑफ सॉल्यूशन। तो mass ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 1 और mass ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 100। तो 1 को जब हम 126 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कैलकुलेट करें इसको और फिर मुझे बताएं कि क्या आपके पास आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 0.03846। नाउ 0.038 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.846%। ये आपके पास जो आई है 3.846, ये आपके पास mass आ गई है इसकी, परसेंटेज mass ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या है 3.846। अब आपने क्या करना है कि आपने वाटर की चीजें जो है वो करनी है। तो 100 से आप 3.846 माइनस करें, मीन्स 100 क्यों, क्योंकि हमने जो भी सॉल्यूशन बनाया है वो हमने 100% बनाया है। तो 100 से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 96.15। ये हमारे पास वाटर है। I hope you understand it very well. Now we study test yourself. आपने पढ़ा है तो आपने क्या करना है कि अपना टेस्ट लेना है। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल यू प्रिपेयर 15% सॉल्यूशन ऑफ मिथानॉल इन वाटर। ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर 15% ऑफ solution of methanol in water। अब आपके पास है कोई चीज जो हमने पहले पढ़ी है, आपने इसको mass by mass प्रिपेयर करना है, mass by वॉल्यूम प्रिपेयर करना है, वॉल्यूम by mass प्रिपेयर करना है और वॉल्यूम by वॉल्यूम प्रिपेयर करना है। मतलब 4 तरीकों से आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो आपके पास जो है वो सॉल्यूट की अमाउंट दी हुई है, मीन्स के 15% ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या होगा, आप करेंगे जो भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 100%, कितना होगा 100%। तो अगर हमारे
85% जो है वो हम क्या कर लेंगे, 85 जो ग्राम है, 15 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट होगा और 85 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट। सो सिंपल, ये हमारे पास 100 आ गया, 100% सोल्यूशन होने जाता है। नेक्स्ट है कि मास बाय वॉल्यूम जो है वो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। मास बाय वॉल्यूम में आप करेंगे 15 ग्राम ऑफ मिथानॉल सॉल्यूट लेंगे और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे आप, जिसका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन बना सकते। इसी तरह वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज में क्या होगा, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट लेंगे और क्या करेंगे, इसको 100% सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर इसको आप क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। मींस आपने आप जो सॉल्वेंट लेना है वो आपने ग्राम में लेना है। एट द लास्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर आपने क्या करना है कि आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर आपने क्या करना है, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने सॉल्यूट लेना है और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने सॉल्यूशन बनाना है। इट्स मीन के आप जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, सफिशिएंट सॉल्वेंट, आपके पास कितना सॉल्वेंट होना चाहिए कि वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाए। तो सॉल्वेंट को भी आपने क्या करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि आपने 15 ग्राम जो है वो इथानॉल लिया है, आप उसको 100 क्यूबिक मीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, तो परसेंटेज कंपोजिशन उस सॉल्यूशन की क्या होगी। ये क्वेश्चन है कि आपने 15 ग्राम इथानॉल लिए C2H5OH और आप क्या कर रहे हो, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन बना रहे हो। तो आपने थोड़ा गौर करना है, इस बात को समझना है। तो ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, ये हमारे पास क्या है कि हम इसका बना रहे हैं, तो हम सॉल्वेंट के अंदर ही इसको डिसॉल्व करेंगे। तो इसको हमने ग्राम में लिया हुआ है, इट्स मीन कि इसको हम क्या कहेंगे, मास। इसको हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। तो हम कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा 15% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। मींस के इसमें हमने ये बताना है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने चार पढ़ी है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन को सुनिए आप, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 15 cubic centimeter of ethanol liquid is dissolved in water at 25 degrees Celsius. The total volume of solution is 100 cubic centimeter. तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपको क्या बताया है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ
नॉर्मल ले रही हूँ 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें आपके पास सल्यूट 15 क्यूबिक सेंटीमीटर है और जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो भी आपके पास क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। सो यू कैन से 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, या 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन वी कैन प्रिपेयर। तो आज का टॉपिक हमारा इधर ही क्लोज होता है।